रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अभी से कैसे हो गया? अभी Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. आवाज सुनाई पड़ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Whenever you join the class, first of all, you all are required to open your videos, okay? ताकि मैं सबको एक बार आइडेंटिफाई कर लूं अच्छे से, कौन कौन क्लास कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। उसके आधार पर ऑफलाइन क्लास में एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है? लिसा, टुडे क्रिस इज एब्सेंट ना इन स्कूल? मैम आया था वो आज क्लास में। But your class teacher told me that he is absent today. Sonam Kumari, who is Sonam Kumari? Sonam Kumari is in your class. Yes, ma'am. Okay. Sonam Kumari, open your video, बेटा. अच्छा, अभी तो कनेक्ट नहीं हुई है। यशराज सिन्हा, yes. So we will start your class. This is your first period, na, of online class. This is your first period. Which subject is going on Yes, ma'am. next online class? History. History is scheduled. History? No. Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Chapter 9. No, at present, I am taking your history class, and today I am continuing the establishment of company rule in India. But
what is your next class? Which subject? You are having which subject in your next online class? English. English. Ma'am, English. Sanjay Tall sir is taking your English, na? Yes, ma'am. Okay. Yesterday also, Sanjay Tall sir is taking had taken your class. Yesterday. Yes, sir. Yes, ma'am. How many participants are there? In history class, Ma'am, very few participants are joining. In English class, in history ma'am, you have, 18 या 19. but in your social science class only 17 students are there. Why? What is the reason behind the difference of two students? Manya Nakfofa, roll number. एक सिर्फ 8F लिखकर कौन आया है? जब तक नाम नहीं करेगा तब तक हम एट एफ लिखा हुआ जो भी बच्चा है जरा ओपन करोगे अपना वीडियो? चला गया है, लीव हो गया है क्या? नहीं, 8F के नाम से कौन ज्वाइन किया है? जब तक नेम और क्लास नहीं रहेगा तब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे। रिमूव कर दिए, अब वो ज्वाइन भी नहीं कर सकता है। You all are required to join my class with proper name and class, section, roll number, whatever given, but name must be there. Okay? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. So let us start. So we have already discussed the beginning of European era in Indian history after Vasco da Gama, when he landed the Calicut coast. After that, European era begins in India, and various European trading companies were interested to trade with India and make huge profit, as India has full of resources. They came from different parts of Europe and trade different products from India, and then set up their factories at different coastal areas. जो भी हैं आप लोग फ्रेंड में से ही बता दीजिए, जो 8F के नाम से एंट्री लेना चाह रहा है उसको एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है? नाउ टुडे वी विल start the East India Company, establishment of East India Company in India. If you are having any confusion in first two paragraph, what are factories, why they were given the name factories, because factor of production is there, officials resides there in factories and perform different trading activities. So any questions in first two block? Do you have any question? If you are having any question, then ask. 8F नाम से कौन बार बार एंट्री ले रहा है जी? ओपन करो अपना वीडियो, ओपन करो। 8F के नाम से जो भी एंट्री लिए हैं वीडियो ओपन करो। बार बार फिर हमको यश कुमार बार बार कैसे ये हो जाता है भाई, रिमूव हो जाता है?
शिवराज है लिसा तुम्हारे क्लास में? शिवराज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now let us start the East India Company. The history of the world has not witnessed a more amazing story than that of establishment of the British Empire in India. पूरे हिस्ट्री में, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, मतलब इससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी ही नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर हमारे इंडिया में बन गया। हम पहले भी बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कि लास्ट मुगल एम्परर हमारा औरंगजेब था और उसके जो भी सक्सेसर थे दे वेर वेरी वीक इन नेचर एंड the whole empire is disintegrated and divided into many small kingdoms, and taking the advantages of disunity among different kingdoms, British got the opportunity to enter in India and then entered in the administration system and finally take over all administration and empire under them. तो ये हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री में इससे ज्यादा अमेजिंग बात नहीं थी कि किस तरीके से हमारे इग्नोरेंस का फायदा उठाकर, डिसयूनिटी का फायदा उठाकर एक बड़ा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर एस्टेब्लिश किया। तुम लोगों को ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का जो साइज, वो इंग्लिश, वो इंग्लैंड, उसका साइज हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है, एक छोटे से स्टेट के बराबर है। इंडिया में कितने स्टेट हैं टोटल? हाँ 28 28. हाँ 28 जो स्टेट्स हैं, इतने में से एक छोटा सा स्टेट के बराबर का साइज है किसका? इंग्लैंड का। अब वो एक छोटा सा स्टेट के बराबर साइज वाला कंट्री हमारे पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर बनाया। इससे बड़ी आश्चर्यजनक बात कुछ हो सकती है क्या कि इतने बड़े साम्राज्य पर वो पता नहीं कैसे कब्जा कर लिया। सोचो कि कितना है हमारे यहाँ, मतलब इग्नोरेंस रहा होगा, लोग कितने भोले भाले थे, लोग कितने मतलब समझ नहीं पाए उनकी चालाकी को। तो ये हिस्ट्री का एक अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। It was not the result of deliberate effort, but a series of episodes that finally led to political dominance of India by the East India Company. अचानक से कुछ भी नहीं हुआ, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। कल हम इवेंचुअली वर्ड भी बोले थे कि एक इवेंट फिर दूसरा इवेंट जो है धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल रहा और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी मर्ज हो गया आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत और धीरे धीरे हमारा पूरा कंट्री जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया। The East India Company set up trading ports in Surat and 3 presidency settlement at Fort William in Bengal, Fort St. George in Madras and the Bombay Castles. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी किस लिए सेटअप की थी अपना ट्रेडिंग पोर्ट? सबसे पहले बताओ, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड सेटिंग अप फैक्ट्रीज एट डिफरेंट कोस्टल एरिया? एनीवन? कल ही हम बताए थे पर्पस क्या था, फैक्ट्री वो क्यों ओपन किए थे? फैक्ट्री ओपन किए थे ताकि वो आसानी से ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें। और वो फैक्ट्री जहां पे ओपन किए थे वहां पे जो उनके ऑफिशियल्स होते थे, ट्रेडिंग ऑफिशियल्स जो व्यापार करते थे, वो रह सकें और आसानी से ट्रेड कर सकें, इसलिए फैक्ट्री ओपन किए थे कोस्टल एरियाज में। शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो भी अपना ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया, कहाँ कहाँ? सूरत में और 3 प्रेसिडेंशियल स्टेट्स में, जिसमें कि आपका आता है फोर्ट विलियम बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास एंड बॉम्बे कैसल। देख रहे हो 3 तरफ। वेस्ट बंगाल में आपका फोर्ट विलियम पोर्ट और नीचे और आ जाओ साउथ में ईस्टर्न कोस्ट में मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी, और वेस्ट में आ जाओ मुंबई प्रेसिडेंसी। सूरत तो पहले से था ही। यानी कि 4 ऐसा पॉइंट बनाए थे वो अपना ट्रेडिंग पोर्ट जहां से
इंडिया के हर हिस्से में नजर रख सके। पूरा साउथ इंडिया तो ऑलरेडी उनके मतलब ये में था, विद इन देयर रीच, और अलग अलग ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाकर भी वो धीरे धीरे इंडिया के हर पोर्शन पे अपना नजर रख रहे थे कि कहाँ से कितना फायदा उनको हो सके। ये प्रत्युष राज क्लास 7F लिख रहे हो? 7F अभी भी चल रहा है। कौन है प्रत्युष? लिसा तुम्हारे क्लास का है? Yes, ma'am. वो Yes, 7F ma'am. लिखा है। उसको कल बता देना क्लास में कि वो 8F के नाम से रीनेम करके तब इंटर करेगा, ठीक है? और विशाल शर्मा भी आपके क्लास का है? Yes, ma'am. ओके। हाँ ठीक है, तो ये 3 जगह बनाए। पहले सूरत में बनाया ट्रेडिंग पोर्ट, उसके बाद बॉम्बे, मद्रास एंड फोर्ट विलियम, वेस्ट बंगाल। They established friendly relations with the local princes to further their profit. The Indian rulers signed alliances to secure the help of the English military to settle their internal rivalries. अभी हम बता रहे थे ना कि इंडियंस बहुत भोले थे, और इनका भोलापन का ही नाजायज फायदा उठाकर इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर बन गया। एक छोटा सा कंट्री पूरे इंडिया में राज किया करीब करीब 200 वर्षों तक। अभी तुमको इस बात से ही क्या हो गया मुस्कान? मुस्कान थी 8F के नाम पर, अब आज तो नहीं हो सकती है वो एडमिट। शुरू में क्या किए, जैसे ही इन लोग 4 अपना ट्रेडिंग पोर्ट ओपन किए, फैक्ट्री ओपन किए, और धीरे धीरे अपने आसपास के रूलर से क्या किए, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना शुरू कर दिए। चैट बॉक्स में ओनली होस्ट से चैट अलाउड है। पेज नंबर तुम्हारा है 101, लेसन नंबर 9। सुन लिया शुभम? कल क्लास नहीं कर रहा था क्या? ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेडिंग पोर्ट बना उसमें ये लोग क्या काम किए? पहला काम क्या किए? पहला काम किए कि आसपास में जो भी छोटे छोटे किंगडम है उन सबसे फ्रेंडली रिलेशन डेवलप किए। बेटा शुभम, यस मैम बोल रहा है, फिर भी टू एवरीवन, ओनली टू होस्ट, ठीक है? जो भी बात करना है आपको होस्ट को सेंड करना है, एवरीवन से बात नहीं करना है ऑनलाइन क्लास में। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, हाँ अभी ठीक बोला, फ्रॉम शुभम टू मी, सभी के लिए वही बात है। दूसरा काम क्या किए? अब लोगों को लालच देना शुरू किए कि आप तो छोटे हो, अगला किंगडम कॉन्स्पिरेसी करने लगे, षड्यंत्र करने लगे कि अगला किंगडम से अपने आप को बचाने के लिए या उसको जीतने में हम आपको मदद करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार से प्रॉफिट कमा सके। शुरू में उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा जगह में उनको व्यापार करने का मोनोपोली मिल सके। कुछ फ्रेंच अपना ट्रेडिंग पोर्ट बनाए हुए थे, कुछ ब्रिटिश अपना बनाए हुए थे, तो ब्रिटिश भी चाहते थे कि हम लोकल किंगडम को अपने ग्रिप में ले लें, फ्रेंच भी चाहते थे कि लोकल किंगडम को अपने ग्रिप में ले लें और सिर्फ हम ही व्यापार करें, ब्रिटेन वाले नहीं करें। फ्रेंच वाले ऐसा चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे कि नहीं सिर्फ हम व्यापार करें, फ्रेंच वाले नहीं करें, फ्रांस के नहीं करें। तो इसके लिए क्या किए, वो पहले लोकल जो किंगडम जो भी थे उनके ट्रेडिंग पोर्ट के आसपास के उन सबको धीरे धीरे अपने में मिलाना शुरू किए। कैसे? उनके आर्मी को ट्रेंड करके, उनको मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करने का वादा करके, उनको दूसरे किंगडम अगर उन पर अटैक करते हैं तो हेल्प करने का वादा करके, ठीक है ना, धीरे धीरे अपना घुसपैठ शुरू किए। धीरे धीरे उनको अपने अपने ग्रिप में लेने लगे ताकि और ये पूरा फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करके वो ऐसा कर रहे थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। और बाद में इंडियन रूलर्स उन पर विश्वास करने के लिए क्या किए, उनके साथ अलायंसेस फॉर्म किए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ अलायंसेस? ALLIANCE
अलायंस का मतलब समझते हो? जब तक पूछेगा नहीं तब तक कैसे करेंगे? अंजू कुमारी 6F से और रोल नंबर 6 है। अलायंस का मतलब होता है संधि। संधि का मतलब समझते हो? फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप। आप दो सेक्शन से मान लो बच्चे आए हैं, कुछ 7F के हैं, कुछ 7G के हैं, एक क्लास में आ गए और आप उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो दोस्ती कर रहे हैं तो भाई तुमको मैथ्स बहुत अच्छा आता है, हमको साइंस बहुत मन लगता है, तो हम ऐसा करेंगे, हम लोग साथ बैठते हैं, तुम मैथ्स का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर देना, हम साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, और एक अच्छा दोस्ती हो जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का बारे में जानते हैं, एक दूसरे का सीक्रेट को भी शेयर करते हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग पोर्ट स्टैब्लिश करके ईस्ट इंडिया की कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे धीरे धीरे लोकल रूलर से ट्रेडिंग अलायंसेस शुरू किए, संधि शुरू किए, फ्रेंडशिप को बॉन्ड बनाए, फ्रेंडशिप को एकदम पक्का करने के लिए आपस में संधि किए, अलायंस किए, to secure the help of the English military to settle their internal rivalries। एक तरफ वो जब संधि किए, एक एग्रीमेंट किए लोकल रूलर से, तो ये क्या बोले कि भाई यहाँ पे ट्रेडिंग मोनोपोली मेरा ही होना चाहिए। तो लोकल रूलर तैयार हो गया और बदले में लोकल रूलर को क्या ये प्रॉमिस किए कि आंतरिक जो भी लड़ाई झगड़ा, आंतरिक कहने का मतलब आसपास के किंगडम से जो भी वार होगा उसमें मिलिट्री हेल्प इनको ब्रिटिश या फ्रेंच प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से सब दोनों ट्रेडिंग ऑफिशियल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और लोकल रूलर में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हुआ, जो कि पक्का हो गया थ्रू अलायंसेस विथ सर्टेन प्रोमिसेस। ठीक है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। अब कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मोटिव नहीं था कि इंडियन रूलर को हेल्प करें, उनका हमेशा से यही मोटिव था कि अभी तो हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि दो के बीच में झगड़ा बढ़ा दें और आपस में वो लोग इंगेज रहें और हम उसका एडवांटेज ले लें। तो वही बोल रहा है, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं फूट डालो और शासन करो। ठीक है ना, फूट डालो और शासन करो। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, कोई एक स्टूडेंट है जिससे 2-3 बच्चे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन किसी कोई एक से पक्का उसका दोस्ती होगा, तो होता है ना कि अरे तुम इसको इतना दोस्त मान रही हो, वो उधर तुम्हारा शिकायत कर रहा था, शिकायत कर रही थी, तो ये तुम इसको दोस्त मानती हो लेकिन ये तुम्हारा शिकायत कर रही थी। फूट डालना हुआ ना, फूट डालो, समझ में आया फूट डालना? तो ब्रिटिश भी यही पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। दोनों किंगडम को, एक किंगडम को बोलते कि हम आपका हेल्प करेंगे उसके अगेंस्ट, और दूसरा किंगडम को भी भड़का देते कि वो तो आप पर वार करने का कोशिश कर रहा था। और इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए एंड कॉन्स्पिरेसी में इंटर हुए डिफरेंट किंगडम से, ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा उल्लू सीधा कर सके, अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। एज ए रिजल्ट द इंडियन प्रिंसेस बिकम मियर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। इंडियन तो थे ही भोले वाले, नहीं समझे इनके चालाकी, और जितना ब्रिटिश भड़काते गए एक दूसरे के खिलाफ, ये भड़कते गए। और एक समय ऐसा भी आया कि आपस में इतना ज्यादा एनिमिनिटी हो गया। एनिमिनिटी मीन्स दुश्मनी, किसमें? डिफरेंट किंगडम्स के बीच में। कौन कराया? बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश कराए सिस्टम, मतलब सिचुएशन ऑफ एनिमिनिटी, दुश्मनी का माहौल कौन डेवलप किया? ब्रिटिश डेवलप किए। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और ये स्थिति हो गया कि लोग इंडियंस ही दूसरे इंडियन किंगडम पर विश्वास नहीं करने लगे, और आपस में उनमें फूट पड़ता गया, झगड़ा बढ़ता गया, और धीरे धीरे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में बिल्कुल पपेट बन गए। पपेट मतलब कठपुतली जैसा, वो जो बोलते आंख बंद कर विश्वास करते और वैसा ही करते, जिससे कि धीरे धीरे इंडियन किंगडम, इंडियन प्रिंसेस का स्थिति खराब होता गया। और इस खराब होने वाली स्थिति का फायदा कौन उठाए? ब्रिटिशर्स। ठीक है,
हाउ कुड अ ट्रेडिंग कंपनी, अब आता है क्वेश्चन कि ठीक है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है मिलिट्री हेल्प का वादा करके दोनों के बीच में भड़काया, लेकिन सिर्फ इतना ही से तो कहीं पूरा कंट्री ब्रिटिश एम्पायर में नहीं चेंज हो जाता। तो यहाँ पे बता रहा है कि कैसे इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये जो सारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, सारा एरिया जो था वो धीरे धीरे कैसे ब्रिटिश इंपीरियल पावर, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का भेंट चढ़ गया है पूरा इंडिया। हाउ कुड अ ट्रेडिंग कंपनी बिकम एन इंपीरियल पावर? The reality is that the East India Company became an imperial power to protect its trading interests from other European traders. It began as a trading company, took over political control and became the ruler of entire India. शुरू में इनका मकसद ये नहीं था कि इंडिया पर रूल करेंगे, शुरू में इनका मकसद ट्रेड करना ही था। और ट्रेड करने लगे तो इंडिया का रिच रिसोर्स इनको इतना अट्रैक्ट किया कि धीरे धीरे उनका जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट जो था वो बढ़ता गया और बड़े एरिया में। हम यहाँ पे फ्रेंच क्यों, यहाँ पे ब्रिटिश क्यों, हर जगह ब्रिटिश ही क्यों नहीं? एक एरिया में व्यापार करने का अधिकार मिला तो और बड़े एरिया में भी खोजने लगे, फिर और बड़े एरिया में, फिर देखे कि अरे व्यापार करके हम इतना लाभ कमा रहे हैं, तो पूरे कंट्री पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंटरफेयर कर जाए, तो शासन व्यवस्था में भी घुस जाए, धीरे धीरे घुसपैठ करें एक दूसरे को भड़काकर, तब तो और हमको व्यापार के लिए किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। जब हमारा ही रूल होगा तो परमिशन नहीं ना लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पहले ट्रेडिंग बेनिफिट्स लिए, उसके बाद स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा एरिया में बनाए और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कब्जा करके पूरे एम्पायर पर रूल करने लगे। The aim of the company was to gain monopoly of the entire trade in the East. The company came into conflict with one other foreign traders and hence built up its own military and administrative departments. It became such a strong force that it took over the governance of Bengal, Madras, and Bombay. Gradually, the trading company transformed into an auxiliary government and military power that ended only in 1858. अभी हम बता रहे थे कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट था पूर्व से, यानी कि हमारे एशिया के डिफरेंट पार्ट से और खास करके इंडिया से व्यापार करना और ज्यादा लाभ कमाना। यूरोपियन कंट्री में कोई एक सिंगल पावर तो था नहीं, शुरू में ही बताया है, स्पेन था, पुर्तगाल था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सब थे, डच थे, हॉलैंड थे। अब सब आकर इंडिया में जब व्यापार करना शुरू किए तो सबको अपना अपना चाहिए जगह, और जब व्यापार करने लगे तो कुछ ट्रेडिंग पोर्ट ऐसे थे जहां पे ब्रिटिश भी चाहते थे व्यापार करना और फ्रेंच भी चाहते थे, तो वो आपस में भिड़ने लगे। और वो आपस में भिड़ने से ज्यादा क्या कोशिश किए कि अगर हम लोकल रूलर को ही अपने फेवर में कर लेंगे तो हमको मोनोपोली मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रेंच, ब्रिटेन आपस में भिड़ गए, पुर्तगाल, हॉलैंड आपस में भिड़ गए, ठीक है, कि हमारा ट्रेडिंग मोनोपोली हो। और धीरे धीरे ये स्थिति आ गया कि जो उसमें आगे बढ़ा, जिसके हाथ में पावर आया, वो पूरे इंटायर ट्रेडिंग सिस्टम पर कब्जा कर लिया। और शुरू में भी यही हुआ, आपका ट्रेडिंग मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के ही क्रम में ब्रिटिश जो था, आपका मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे सब पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और ये कब एंड हुआ, इस तरह का एक दूसरे के खिलाफ कब्जा करने का अभियान का एंड कब हुआ? 1858 में। क्या हुआ था 1858 में? 1857 में क्या हुआ था, कुछ आइडिया है किसी को? 1857। हाँ, रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसका इफेक्ट क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ब्रिटेन पे बहुत बड़ा लॉस गया था। हाँ, ब्रिटिश का लॉस बहुत ज्यादा गया था उस वो बात तो से। था ही, लेकिन 1857 का रिवोल्ट में ऐसे तो उसके बहुत सारे इफेक्ट थे। इंडियन भी थोड़ा सा
जो आपका बाहरी शक्ति थी, ब्रिटिश पावर थी या ईस्ट इंडिया कंपनी का एम एंड ऑब्जेक्टिव समझ ली थी। उनको भी अपने गलती का भी एहसास हो गया था कि वो कोई इनका दोस्त नहीं है, और ब्रिटिश को काफी लॉस हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया। एज ए रिजल्ट सबसे मेजर इवेंट क्या हुआ 1857 के बाद? इट लेड टू ब्रिटिश द खत्म एंड होकर ऑफ, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन चला गया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया और डायरेक्ट रूल किसका शुरू हो गया? पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। हाँ, तो ये मेजर इवेंट हुआ। तो 1858 में जाकर ये जो आपस में ट्रेडिंग पोर्ट के लिए और आपस में व्यापार करने के लिए जो यूरोपियन शक्ति आपस में भिड़ रही थी, उसका खात्मा 1857 के रिवोल्ट के बाद हो गया, और 1858 में इंडिया जो थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर आ गई। अब देखो, ये तो था आपका ब्रीफली, ऐसा नहीं है, इतना सीधा नहीं है हिस्ट्री जितना सीधे हम बता दिए कि भाई कैसे व्यापार करने आए, फिर ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में इंटर किए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए, अलायंस, सीक्रेट अलायंस में इंटर हुए, उनको मिलिट्री सपोर्ट दिया, और आपस में डिफरेंट किंगडम को झगड़ा करवा दिए, और फिर धीरे धीरे एडवांटेज लेके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटर किए और अपना ट्रेडिंग मोनोपोली डेवलप किए। ट्रेडिंग मोनोपोली डेवलप हो गया तो एक बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक ब्रिटेन का बना, एक बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक फ्रेंच का बना। अब फ्रेंच और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन दोनों चाह रहे थे कि इंडिया में उन्हीं का कब्जा हो। वो ब्रिटिश मोनोपोली वाला एरिया में घुसना चाहते थे, और ये ब्रिटिश जो थे वो फ्रेंच मोनोपोली वाले एरिया में घुसना चाहते थे। तो इस तरीके से वो लोकल पीपल को उसका भेंट चढ़ा रहे थे, और अब लोकल लोग भी समझने लगे थे कि ये तो सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनके हाथ में पपेट बन गए थे सारे किंगडम, और पपेट बन गए यानी कि पावर, एक्चुअल पावर ट्रांसफर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो वो उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू किए। तब उनको अपनी स्थिति का एहसास हुआ कि अरे ये तो हम बहुत गलत किए, इनके साथ सीक्रेट अलायंस में आए और धीरे धीरे ये हमारे खजाने पे भी कब्जा कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना इंडिपेंडेंट कोई फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उनको समझ में आया, और प्लस लोकल भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ और कंपनी रूल एंड होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में आ गए। तो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आने से पहले इंडिया में कौन कौन सा सदर्न स्टेट का पावर के लिए डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडिंग ब्लॉक्स आपस में भिड़े, उसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि 1701 से तो इन लोग शुरू हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट, तो 1857 और 1700 मतलब कि 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच में ऐसा मेजर इवेंट्स क्या हुआ था कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट रूल, ब्रिटिश के डायरेक्ट रूल में पहुंच गई थी। तो उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले आते हैं द कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक वॉर्स हुआ था, कार्नेटिक एक जगह का नाम है, वहां का सबसे बहुत एक प्राइम लोकेशन होता है ना आरकोट, उसको उस पर कब्जा करने के लिए बार बार लड़ाई हुआ था डिफरेंट किंगडम में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो देखते हैं कि कार्नेटिक वॉर्स क्या है। द कार्नेटिक वॉर्स वेयर ए सीरीज ऑफ बैटल फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। अभी हम क्या बता रहे थे, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज में इंग्लिश कंपनी भी थी, फ्रेंच कंपनी भी थी, डच कंपनी भी थी, पोर्तुगीज कंपनी भी थी, सभी थे, स्पेनिश भी थे। लेकिन धीरे धीरे प्रभाव किसका बढ़ा इंडिया में ज्यादा, पूरे सदर्न इंडिया में? फ्रेंच का और ब्रिटिश का। बाकी सब यूरोपियन ट्रेडिंग पोस्ट धीरे धीरे अपने जगह पे लिमिटेड हो गए छोटे से एरिया में, लेकिन जो सबसे बड़ा एरिया किसके अंडर में आया? फ्रेंच के और ब्रिटिश के। अब फ्रेंच चाह रहा था कि ब्रिटिश का एरिया भी हम छीन लें, अब ब्रिटिश चाह रहा था कि फ्रेंच का एरिया भी हम छीन लें। दोनों अपना मोनोपोली ज्यादा बढ़ाना चाह रहा था, जिसकी वजह से दोनों ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में वॉर हुआ, जिसको कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें कोई एक बैटल नहीं हुआ था, सीरीज ऑफ बैटल, कई सारी लड़ाइयां हुई। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो देखते हैं
कि कौन कौन सा वार किस किस पीरियड में हुआ है, आपको याद रखना है. These wars were driven by opportunism on all sides, and though the native princes did not want to surrender their territory to an outside power, they often cooperated willingly with Europeans to strengthen their own position. Basically ये वार किस लिए था? किसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है व्यापार करने के लिए, इसके लिए था. और लोकल किंगडम इस वार को क्यों सपोर्ट किए? कुछ किंग्स जो थे ब्रिटिश के साइड से थे और कुछ जो थे फ्रेंच के साइड से. क्यों सपोर्ट किए? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे. वो नहीं चाहता था कि वो किंग जो है उन पर कब्जा कर ले, इधर वाला नहीं चाहता था कि उन पर कब्जा. तो किसी न किसी यूरोपियन को के साथ वो संधि में, सीक्रेट अलायंसेस में इंटर कर चुके थे ताकि उनका किंगडम ना छूट जाए. और इस तरीके से कुछ राजा जो थे वो फ्रेंच को साथ दे रहे थे और कुछ जो थे वो ब्रिटिश को दे रहे थे. देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुआ था. 1746 to 48, 3 साल का पीरियड है फर्स्ट कार्नेटिक वार का. द कार्नेटिक वार was the result of Austrian War of Succession that took place in 1740 between Austria and Prussia. कहाँ है दोनों कंट्री, ऑस्ट्रिया और प्रशिया? नाम सुना है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब का, ये सब नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं, समझे. इंडिया में कार्नेटिक वार जो था वो किस वार से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में जो यूरोप में वार हुआ था, वहां पे भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया. और एक के साइड से ब्रिटिश होगा हेल्पिंग फ्रेंड नेशन में और दूसरे के साइड से फ्रेंच होगा. तो वहां के वार का इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिला और यहाँ भी कार्नेटिक वार शुरू हुआ. इंग्लैंड एंड फ्रांस इंटर्ड फ्रॉम ऑपोजिट साइड इन दिस वार. अभी हम बताए ना, ऑस्ट्रिया और पर्शिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी यूरोप में 1740 में, उसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में थे, एक ही साइड में नहीं थे, दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट्स में, ऑपोजिट साइड में थे. तो इंडिया में भी जब कार्नेटिक वार हुआ तो किसके किसके बीच में हुआ? इनडायरेक्टली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में. इंग्लैंड के साथ कुछ इंडियन किंगडम और फ्रांस के साथ कुछ इंडियन किंगडम. समझ में आ रही है सबको बात? आपको याद रखना है सारा मतलब इवेंट्स. यस मैम. इंग्लैंड एंड फ्रांस इंटर्ड फ्रॉम अपोजिट साइड्स इन दिस वार. कॉमडोर बार्नेट, द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर. नेवल ऑफिसर का मतलब समझते हो? काबिलदार. हाँ, काबिल. क्या बोल रहा है शुभम? काबिल मैम. नेवल ऑफिसर होता है जो जहाज लेकर, पानी का जहाज लेकर लोग व्यापार करने आए थे ना, उसका हेड. ठीक है. तो बता रहा है कॉमडोर बार्नेट, द ब्रिटिश नेवल ऑफिसर, जिसके सुपरविजन में व्यापारिक जत्था आया था, अराइव्ड इन इंडिया विथ हिज ट्रूप्स. वो अपने साथ अपना जो जहाज को लाया, वो अपने साथ ट्रूप्स मतलब सेना का एक टुकड़ी भी लेकर आया था. ठीक है. ये कहाँ का था? ब्रिटेन का. अब ब्रिटेन वाले अपना जहाज में अपने नेवल ऑफिसर के साथ सेना का एक टुकड़ी भी भेजे. किस लिए? ताकि वो फ्रेंच के अगेंस्ट में जब लड़ाई करे तो उससे जीत सके. बट द फ्रेंच प्रपोज्ड पीस विथ ब्रिटिश. The Nawab of Carnatic, Anwaruddin, also supported the idea that there should not be any war. So Commodore Barnet returned to England, but Dupleix did not keep his promise and attacked Madras and occupied it. British